Today, actually, we are discussing about that current environmental challenges, and the in this unit two and unit four, I will be teaching, and unit one, unit three will be taught by Anjali ma'am in this current environmental challenges. So, in this unit two, there is have you gone through this syllabus, your MSc syllabus? Yes, audible. Actually, have you gone through the syllabus? Okay, just I will share in this group. I just download it. MSc syllabus first 1 minutes. Uh, yes. Okay, now I am sharing my uh, screen. 1 minute. There is okay. Is it visible now? My screen is visible to you now. Okay, this is your syllabus for current environmental issues. And unit 2, we already covered about environmental issue related to water project. How the big water project, that means hydroelectric power project and dam, by building of this dam, how what are the main issues related, what are the main benefits and what are the main consequences of that. So there are different types of dam constructed in different rivers of India, and is having its own story. Have you heard about the dam and Sardar Sarovar Dam? This is the most that is Statue of Unity is there. So, recently, this Statue of Unity having the tallest in the world, among the one of the tallest statue. So, what is the benefit actually by building of this Sardar Sarovar Dam? Do you think that is there any benefit to the nation? Why we are spending so much crores of rupees for building the dam, building for statue? What is your view? Can you explain? Just share your view. Hmm. Huh. Hmm. Yes, unity statue is not our subject. We have just discussed about the dam and the canal. Hmm. 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 Yes, this is the main concern in Gujarat state, particularly, uh, because the Gujarat having getting low rainfall as compared to other states, and so many regions in the Gujarat states are arid and less due to the less rainfall. The what the wheat and the grain which are producing less. So here mainly the cotton is more growing. So in order to need the more food production, we have to need water. So where we can get the water by constructing dam, and we can just irrigate so many lands area. So main purpose is drinking water and for the irrigation purpose. This is the main purpose of constructing dam in the Gujarat state, particularly Sardar Sarovar Dam, and which is situated in the which river? Yes, Narmada River. So, uh, another aspect is for producing hydroelectricity power. In the dam, constructing the dam, we have to generate cheap electricity by just flowing the water from higher region to lower region. This is called hydroelectricity power. Hydroelectricity power, which is generally environmentally friendly and called green energy because it does not pollute our environment. It just Yes, it does not produce any pollution gases like in the thermal power plant. What happens? Coal is burning, and it can generate electricity by generation of steam by burning of coal. So the byproduct is what is the byproduct?
lots amounts of poisonous gases, the carbon dioxide, sulfur dioxide, nitrogen dioxide, which is the main environmental concern. But in order to need, matlab, in order to generate, meet our need of energy, this is most important in for any country. We have to bound to produce energy by whichever it means. Mainly in our India, we can generate electricity by thermal power plant. Most electricity part of the electricity is generating by thermal power plant. But whenever there is a chance to generate a green electricity and which is cheaper also, then it is hydroelectricity thermal plant. That means a hydroelectricity power project. That means another, what are the another different form of power generation in our India? That is nuclear power. Yeah, other one is hydro, one is nuclear, one is thermal. These three are the major power generators. Yes, but among these, there are different energies resource are there that are called, uh, what are these? Like wind energy, solar energy, tidal energy. These all are very less quantity, but majority is thermal power plant. Next to thermal, that is hydro power plant. So the main purpose of construction of dam is mainly three purpose. First is irrigation, second is drinking water supply, third is hydroelectricity project. These three are the main purpose of building a dam or construction a dam over a river. So not we have to see both advantages as well as disadvantages due for the construction of dam. We just see one part, that is advantages. But what are the disadvantages? Can you say one or two points? What are the building disadvantages of a dam? Disadvantages. Okay. Hmm. 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 हाँ, हाँ, एक नहीं, हाँ, हाँ, हाँ। देखो क्या है ना, आर यू कंफर्टेबल इन हिंदी ऑल्सो ना? यस, देखो जब भी कोई डैम होता है तो हम लोग मेजोरिटी पर्सन देखते हैं कि क्या बेनिफिट है, लेकिन क्या मतलब जो उसका डिसएडवांटेजेस है, उस उसको हम लोग अभी डिस्कस करेंगे यहाँ पे। व्हाट आर द, ये क्या है यूनिट 2 में एनवायरमेंटल इशू रिलेटेड टू दैट प्रोजेक्ट। तो क्या डी बेनिफिट, तो ठीक है, इरिगेशन है जो भी है, वह ड्रिंकिंग वाटर है, उसके बाद पावर प्रोजेक्ट है, उसके बाद उसका डिसएडवांटेजेस क्या है? मेन डिसएडवांटेजेस, लार्ज अमाउंट और लार्ज एरिया कैन बी गेट सबमर्ज। बहुत जगह क्या होगा, वाटर लॉक हो जाएगा। तो उसमें जो लोग रह रहते हैं उनको क्या करना पड़ेगा? दे गेट फोर्स टू डिस्प्लेस देयर लैंड, देयर होम टाउन टू द डिफरेंट प्लेसेस। हाँ, उनको एक जगह पे उठा के दूसरी जगह पे शिफ्ट करना पड़ेगा। ये तो ठीक है, लोगों को ठीक है, शिफ्ट कर लेंगे। दूसरा क्या होगा? लार्ज फॉरेस्ट इन एनवायरमेंटल रिलेटेड, लार्ज फॉरेस्ट एरिया दे कैन गेट सबमर्ज्ड। एक जगह पे जो जितना फॉरेस्ट एरिया है, पानी लग लग हो जाएगा तो क्या होगा? फॉरेस्ट एरिया फुल्ली सबमर्ज। तो जितना भी वहाँ पे पेड़ पौधे जीव जंतु यहाँ पे थे, वो लोग कहाँ जाएंगे? सारे डिस्प्लेस हो जाएंगे। जो तो फॉरेस्ट एरिया कैन बी वाटर लॉग्ड, ऑल फ्लोरा एंड फोना एंड ऑल दिस एनिमल्स दे आर डाई और फोर्स टू डिस्प्लेस। ये हो गया दूसरा उसका एनवायरमेंटल एक्सपेक्ट। तीसरा, इंडिया में एक मेजोरिटी प्रॉब्लम है, दैट इज कॉल्ड करप्शन। जब भी कोई प्रोजेक्ट होता है तब क्या होता है, उसमें से मान लो 100 करोड़ पैसे आया ऊपर से कि इन लोगों को डिस्प्लेस किया जाए, उन लोग एक्चुअली प्रॉपर रिहेबिलिटेशन शुड बी टेक्स प्लेस। बट जब तक लोगों के पास पहुंचता है, उसमें से ज्यादा लोग पहले से ही खत्म हो जाते हैं, खा देते हैं। तो एक्चुअली proper distribution of the rehabilitation और proper valuation of the people they can not get। उन लोगों को एक्चुअली जो मिलना चाहिए बेनिफिट वो नहीं मिलता है। ये सारी चीज डिमेरिट में आता है। तो दैट्स वाई बिफोर कंस्ट्रक्टिंग ए डैम,
देयर इज ए कॉल्ड एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट। आपने सुना होगा ये वर्ड पहले से कभी? एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट सुना कभी? एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट क्या है? मतलब पहले एक, हाँ, एक उसका एक जस्ट है एक कमिटी बैठता है, उसमें कमिटी में क्या करेंगे, कुछ लोग फेवर में बोलेंगे, कुछ लोग अगेंस्ट में बोलेंगे। बोलेंगे क्या उसको ये मतलब नोट डाउन करेंगे, तो ये होगा तो कितना पैसा खर्च होगा, कितना जमीन डूबेगा, कितना पेड़ पौधे कटेंगे, कितना पैसा लगेगा उनको वहाँ रिहेबिलिटेशन करने के लिए, सारे चीज एक साइड लिखेंगे। और एक साइड और लिखेंगे उसमें बेनिफिट क्या है, कितना पावर प्लांट, कितना मेगावाट, हाउ मेनी मच मेगावाट पावर प्लांट you can be established, how many area of land drought area can be irrigated, how many towns and villages that can be get water from this project। सारे बेनिफिट एक साइड में नोट करेंगे। मान लो जो बेनिफिट है और डिसएडवांटेजेस है, इनका 80 और 20% हुआ, 80% बेनिफिट में आ रहा है और 20% आ रहा है उसमें डिसएडवांटेज में, तभी हम जा सकते हैं प्रोजेक्ट काम करने के लिए। मान लो जो डिसएडवांटेज है वो 80% हो गया, बेनिफिट 20% है, तो उसमें वो प्रोजेक्ट कैंसिल हो जाएगा, वो प्रोजेक्ट नहीं होगा। फिर भी जो लोग वहां पे रहते थे उन लोगों को डिस्प्लेस करने के लिए जाओगे तो वो लोग तो ऐसे डिस्प्लेस नहीं हो जाएंगे ना, उनको पैसे दो कि ना दो, वो लोग क्या करेंगे, आंदोलन करेंगे, वो लोग वहां पे प्रोटेस्ट करेंगे, वो छोड़ने के लिए तैयार भी नहीं है बिल्कुल। सो दे टाइप ऑफ इश्यूज दे कैन बी फाउंड व्हाइल कंस्ट्रक्टिंग ए डैम। तो मैं थोड़ा सा एक आपको, क्योंकि बाकी लोग तो आए नहीं अभी, तो नर्मदा डैम को थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। मेरा स्क्रीन दिख रहा है ना? हाँ, हाँ, एक मिनट। ओके। हाँ, नहीं नहीं, ये देखो ये जस्ट एक कहानी टेक जैसा है। नर्मदा डैम हो गया, अलामिटी डैम हो गया, गंगा रिवर हो गया। मैं खास करके इसका यूनिट की बात बोल रहा हूँ, जो वाटर इशू है ना, यूनिट 2, उसके बात बोल रहा हूँ, इसका बात बोल रहा हूँ। बाकी जो भी है, एयर वाटर सॉयल इश्यूज फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ एनवायरनमेंट जो है ना, इतना डीपली आपको अंडरस्टैंड नहीं करना से भी वो हो जाएगा आपका, चिंता मत करो इसका, क्योंकि एक बार थोड़ा सा समझ लीजिए ना, एक बार रीडिंग भी कर लिए तो आप ना कुछ लिख ही लोगे उसमें। ऐसा है ना कि फिजिक्स केमिस्ट्री है कि उसका इक्वेशन वो सब उतना झंझट नहीं है उसमें। हाँ, हाँ, आपका बैकग्राउंड क्या है, केमिस्ट्री? बीटेक है ये आपका? ये अच्छा अच्छा अच्छा। तो अभी वही सेफ्टी डिपार्टमेंट में है या क्या? ओके ओके, दैट्स ग्रेट। ये ठीक है, देखते हैं सर, अबाउट जस्ट ब्रीफली डिस्कस अबाउट व्हाट सरदार सरोवर डैम। जैसे कि मैंने बोला था, सरदार सरोवर डैम इज द ग्रेविटी डैम, यहाँ पे है, एक मिनट, कमेंट, हाँ ग्रेविटी डैम, एक मिनट, ये पेंसिल आ गया। हाँ देखो, सरदार सरोवर डैम इज ए ग्रेविटी डैम, इज ए ग्रेविटी डैम। ग्रेविटी डैम मतलब व्हाट इज मीनिंग ऑफ ग्रेविटी डैम? दैट मीन्स, ग्रेविटी डैम मीन्स पानी ऊपर से रखा हुआ है और ऑटोमेटिकली नीचे फ्लो हो रहा है, दैट्स कॉल्ड ग्रेविटी डैम। उसको कुछ पंप का जरूरत नहीं है, जस्ट ऐसे ही गेट खोल दो और नीचे आ जाएगा। दैट मीन्स ये सरदार सरोवर जो डैम जो है वो पहाड़ी का ऊपर है, वहां पे डैम किया गया है, और नीचे एरिया में ऑटोमेटिकली गेट खोलने से पानी आ जाता है, दैट्स कॉल्ड ग्रेविटी डैम। हाँ, 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 होता है। नहीं नहीं, ग्रेविटी डैम मतलब इसका हाइट वाटर लेवल इज एबव द सी लेवल वाटर। और भी होता है, जैसे कि जो लेवल में मतलब पहाड़ी के ऊपर नहीं है, सिर्फ उसमें क्या करते हैं, सिर्फ वाटर को डैम बना के रखते हैं। जैसे कि एक डैम एग्जांपल सुना होगा आपने, उड़ीसा में क्या डैम है, हीराकुद डैम, सुना होगा, हीराकुद डैम उड़ीसा में, दिस इज द लार्जेस्ट अर्थ डैम, दैट इज नॉट ए ग्रेविटी डैम। उसके बारे में भी है यहाँ पे क्लास, मतलब है, थोड़ा सा बताएंगे। जैसे कि हीराकुद डैम इज अर्थ डैम, अर्थ डैम मीन्स वो मिट्टी का बांध है, और वो प्लेन एरिया में है, वो पहाड़ी के ऊपर नहीं है। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन सरदार सरोवर डैम एंड हीराकुद डैम। हीराकुद डैम इज अर्थ डैम एंड दिस ग्रेविटी डैम।
आर्ट डैम मीन्स मिट्टी का बांध बना हुआ है बहुत एरियाज में, उसका साइड में जितना भी एरिया है पूरा सारा एरिया में मिट्टी का बांध बना हुआ है पत्थर और मिट्टी में। तो उसका एरिया सबसे ज्यादा लंबा है एंड दैट इज 25 किलोमीटर लेंथ। वो डैम का लेंथ कितना है, 25 किलोमीटर लंबा है पूरा। सो फॉरगेट। तो दिस इज ए ग्रेविटी डैम, इसका लेंथ छोटा है और पहाड़ी का ऊपर है ये। एंड ये प्रोजेक्ट 1979 में स्टार्ट हुआ था। इसमें थोड़ा सा आप बाद में रीडिंग करना, मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ अभी, क्योंकि अभी ऑलरेडी ये खत्म हो गया है उसमें। नेक्स्ट, ठीक है, जियोग्राफिकल लोकेशन, where is this start, the southwest of Malwa plateau at discuss in the track that is Malwa hills, माथरवार हिल्स। ये मध्य प्रदेश यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। मध्य प्रदेश से डैम यहाँ से, जैसे कि रिवर कहाँ से, नर्मदा रिवर है, अबाउट द नर्मदा रिवर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। और कहाँ पे आ रहा है, ये गल्फ ऑफ कम्पी, इसमें गुजरात का जो साइड में है, जो द्वारिका साइड में, उस साइड में उसका समुद्र से मिल रहा है। तो दिस उसके बाद आ गया मेन नर्मदा कैनाल। नर्मदा कैनाल मतलब डैम बनने के बाद एक कैनाल में जो इरिगेशन पर्पज के लिए जा रहा है। इसमें द डैम विल बी इरिगेट दिस मच अमाउंट ऑफ द लैंड, दिस इज ह्यूज अमाउंट लैंड, जो ड्रॉट प्रोन एरिया जो आप बोल रहे थे, ड्रॉट प्रोन एरिया जहाँ पे पहले बिल्कुल पानी नहीं जाता था, अभी वो नर्मदा कैनाल की वजह से वहां पे पानी जा रहा है और वहां पे क्रॉप हो रहा है अभी। उसके बाद नेक्स्ट इज सोलर पावर जनरेशन। देखो ये तो हाइड्रो पावर जनरेशन ठीक है, वो तो हो रहा है, लेकिन यहाँ पे एज एज वेल एज सोलर पावर भी जनरेट हो रहा है, बिकॉज नर्मदा कैनाल के ऊपर आपने देखा होगा, ऐसे जहां भी कैनाल गया है ऊपर में से सोलर पैनल लगा हुआ है ये। हाँ, तो ये दिस इज ऑल्सो स्कीम, वन स्कीम ऑफ द दिस सरदार सरोवर डैम, नर्मदा जो प्रोजेक्ट है, दिस इज पार्ट ऑफ दिस प्रोजेक्ट। and there is what is the capacity, 25 megawatt of power also is can generate by this solar system, solar power generation। लेकिन ये जो सिस्टम है ना, ये थोड़ा सा फेल्योर है, क्योंकि इसके ऊपर धूल दस जम जाएगा, कोई पत्थर मार देगा, ऐसे ही टूटा फूटा। जब इंस्टॉल जब कर रहे थे तभी ठीक था, लेकिन उसका सही मेंटेनेंस नहीं हो पा रहा, तो इसका थोड़ा और करप्शन भी हो रहा है, दैट्स व्हाई ये थोड़ा सा मतलब प्रोजेक्ट फेल्योर लग रहा है यहाँ पे। लेकिन जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट है, दैट इज मेन पर्पजेस। देन प्रोजेक्टेड बेनिफिट, बेनिफिट क्या क्या होना है उस डैम से, दीज आर द बेनिफिट, दैट मीन दिस बेनिफिट आर मेनली थ्रू आउट द कॉस्ट ऑफ इमीडिएट ह्यूमन एनवायरमेंटल डिस्ट्रप्शन। ये ह्यूमन डिस्ट्रप्शन एंड एनवायरमेंटल डिस्ट्रप्शन, दैट इज द टू थिंग्स। ह्यूमन डिस्पर्सन मीन्स ह्यूमन के ऊपर क्या इफेक्ट आ रहा है, और एनवायरमेंटल डिस्पर्सन, डिस्पर्सन मीन एनवायरमेंट में कितना फॉरेस्ट गया, कितना प्लांट, ये सारे ऊपर आ रहा है। So first, for constructing dam, we have to generalize what is the cost of construction of dam। पहले उसको कितना पैसा लगेगा उसको हम पावर एस्टिमेट करेंगे। तो इसका कहाँ गया, यहाँ पे देखो डिटेल्स है यहाँ पे। दिस इज ए ग्रेविटी डैम एंड कंक्रीट डैम। देखो ये जो हम पढ़ा था, कौन सा रिवर में है, नर्मदा रिवर में। हाइट ऑफ द डैम इज 163 मीटर, दैट इज 553 मीटर। लेंथ दिस मच, ये इसको जरूरत नहीं है। कैपेसिटी, रिजर्वियर कैपेसिटी, दैट मींस दिस मच अमाउंट ऑफ वाटर कैन बी होल्ड, दिस इज द वॉल्यूम ऑफ वाटर, बहुत सारा पानी रखा सकता है यहाँ पे। नेक्स्ट क्या हुआ है इसका, हाँ दिस इज इम्पोर्टेंट, इंस्टॉल ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जो प्रोजेक्ट है उसका कैपेसिटी कितना है, 1450 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है इसका। हाँ, एंड इन नर्मदा डैम देयर इज हाइट रिलेटेड इश्यू। पहले जब इसको बनाने के टाइम पे इसका हाइट रखना था कितना, सिर्फ 80 मीटर रखना था। फिर हाँ, लेकिन बाद में देखा गया 80 मीटर रखने से कुछ काम नहीं बनेगा, तो उसके बाद देखो एक 99 में इसका 80 मीटर था, फिर 2000 में ऐसे 90 मीटर था, 2008 में 95 मीटर था। ऐसे इसका मतलब ये हाइट जो है उसका धीरे 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 इंक्रीज कर रहे हैं थोड़ा सा, क्योंकि जितना हाइट इंक्रीज करेंगे उतना पानी ज्यादा अमाउंट में पीछे रहेगा। और फाइनली उसका हाइट कितना है, 138.68 मीटर, ये लास्ट फाइनल हाइट अभी तक है ये। अभी नेक्स्ट भी फेज चल रहा है, और भी इंक्रीज कर सकते हैं क्या, बिकॉज दिस सरदार सरोवर डैम प्रोजेक्ट इज नॉट फिनिश्ड येट, एंड दिस प्रोजेक्ट इज प्रोजेक्टेड टू फिनिश इन 2025। ये अभी भी चल रहा है। हाँ, इस देखो ये अभी चल रहा है, उसका मतलब क्या, जो हाइट ऑलरेडी तो 138 मीटर तो है, लेकिन अभी क्या है ना, ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ
स्लीट्स एंड क्ले, जो मिट्टी और उधर से पानी जो आ रहा है उसको रख रहे हैं, तो नीचे क्या होगा, डैम के उस साइड जहाँ पे पानी है वहां पे जमा होते होते जाएगा ना, तो हाइट जो है धीरे धीरे क्या होगा, ईयर के बाद ईयर कम होते होते जाएगा, क्योंकि मिट्टी बालू जो है ना क्या होगा वहां पे जमा हो जाएगा। तो हाइट ऑफ द रिजर्वियर कैन बी, मीन्स डेप्थ ऑफ द रिजर्वियर डिक्रीजेस। तो उसको लिए हमको क्या करना पड़ेगा, उसको हाइट को फिर से इंक्रीज करना पड़ेगा, ज्यादा पानी रहेगा इसीलिए, बिकॉज द मेन पर्पज इज ड्रिंकिंग वाटर है, इरिगेशन वाटर, इरिगेशन ऑफ कैनाल। जब पानी कम हो जाएगा तो इन लोगों को जो डिमांड है वो फिर बढ़ जाएगा ना, इसलिए वो अभी भी उसका चल रहा है काम। ठीक है। नर्मदा डिस्प्यूट्स, डिस्प्यूट्स, व्हाट इज द नर्मदा डिस्प्यूट्स, दैट मीन्स डैम बनने से पहले क्या होता है, जो लोग डिस्प्लेस हो रहे थे, फॉरेस्ट ड्यूब रहा था, तो जितने एनवायरमेंटलिस्ट थे या जो भी पीपुल थे उन लोगों ने क्या हुआ कि अपोज करते थे उस टाइम, दैट इज नर्मदा डिस्प्यूट्स। और उसके बाद ये जरूरत नहीं है। हाँ, this is the different different state where the water of the Narmada canal can be separated। देखो जो construction of this Narmada dam, Gujarat is having water flowing 9 metric flow, इसका क्या है फुल फॉर्म है, MAF, मेट्रिक, एक मिनट, मेगा मेट्रिक नहीं, मेगा एनुअल फ्लो, ऐसा है, मेगा मेगा एनुअल फ्लो। दैट मीन्स दिस मच अमाउंट ऑफ वाटर कैन बी, हाँ, अमाउंट कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू द गुजरात। मध्य प्रदेश में ये जा रहा है, राजस्थान में, मतलब मीन्स द वाटर ऑफ दिस डैम कैन बी यूटिलाइज्ड बाय दिस फोर स्टेट, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, ये कैनल का पानी ये चारों स्टेट में डिवाइड हो रहा है। द वाटर ट्रिब्यूनल नर्मदा डिस्प्यूट्स, ठीक है, ये जरूरत नहीं है उतना, ठीक, बस नर्मदा का इतना ही है, मीन्स कहाँ से जनरेट हो रहा है, उसके बाद उसका डिस्प्यूट्स क्यों हो रहा है, उसका बेनिफिट्स क्या हो रहा है, व्हाट इज द पावर प्लांट में कितना पावर जनरेट हो रहा है। ये थोड़ा मैं इसको शेयर कर दूंगा आपको, ये थोड़ा आपको रीडिंग कर लेना, ठीक है, बस कहानी जैसा लगेगा। दो चार मतलब 4 मार्क का जो क्वेश्चन आएगा तो उसमें कम से कम ऐसे पॉइंट वाइज लिखना, जैसे कि पैराग्राफ वाइज नहीं लिखना है, पॉइंट वाइज, यहाँ पे जैसे पॉइंट वाइज है, तो आपको इजीली ये कुछ डिफिकल्ट नहीं होगा आपको लिखने में। सो उस ये तो नर्मदा हो गया। उसके बाद क्या था हमारा, नर्मदा के बाद था तेहरी डैम। मैं तो ओवरऑल आइडिया दे देता हूँ आज का आपको, ठीक है। तेहरी डैम, तो तेहरी डैम कहाँ पे है, जैसे कि नर्मदा डैम कहाँ पे है, नर्मदा डैम गुजरात में है, तेहरी डैम कहाँ पे है, उसका है, एक मिनट मैं दिखाता हूँ, ये तेहरी डैम, तेहरी डैम इज सिचुएटेड इन उत्तराखंड। ये देखो, ये पहाड़ी के ऊपर है तेहरी डैम। And Tehri Dam is in which river? It is constructed on river Bhagirathi। ये आपको देखना पड़ेगा कौन सा रिवर में कौन सा डैम है। भागीरथी रिवर में तेहरी डैम है, नर्मदा रिवर में सरदार सरोवर डैम है। ये इसका जो कंस्ट्रक्शन जो साइट था वो 1949 में स्टार्ट हुआ था, मीन्स ये ओल्डर है। 1979 में आपका ये डैम स्टार्ट हुआ था, सरदार सरोवर डैम, और 1949 में तेहरी डैम स्टार्ट हुआ था। एंड दिस तेहरी डैम इज इन व्हिच स्टेट, उत्तरांचल, उत्तराखंड, अभी उत्तराखंड हो गया, जो उत्तराखंड में है इसका तेहरी डैम। प्रोजेक्ट डिटेल्स, इसका हाइट कितना है तेहरी डैम का, यहाँ पे लिखा हुआ है, देख सकते हो। हाँ, 260.5 मीटर हाई अर्थ एंड रॉकफिल डैम, ये इंपोर्टेंट है, आपका शॉर्ट क्वेश्चन आएगा मान लीजिए। तो सरदार सरोवर डैम इज ग्रेविटी एंड कंक्रीट डैम, एंड दिस इज अर्थ एंड रॉकफिल डैम। उसके बाद ये बेनिफिट क्या क्या बेनिफिट होने वाला था, व्हाट इज द इंस्टॉल कैपेसिटी प्रोजेक्टेड इंस्टॉल मेगावाट। यहाँ पे भी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट का है, उसका वैल्यू क्या है 2000 मेगावाट। वहां पे कितना था 1475, यहाँ पे था 2000। ये थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा शॉर्ट क्वेश्चन के लिए।
बेनिफिट टू द नेशन, और क्या क्या बेनिफिट है ये, हाँ अच्छा अच्छा, 2400 मेगावाट। और बेनिफिट क्या है, इरिगेशन, हियर ऑल्सो 2.7 लाख हेक्टेयर्स ऑफ एरिया इरिगेटेड, 163 गैलन्स पर लीटर वाटर सप्लाई टू दिल्ली। जो दिल्ली सिटी है, ये डैम से पानी वहां पे भी आता है। ऑल अराउंड फॉर ड्रिंकिंग एंड डेली यूज पर्पजेस, ये दिल्ली में सप्लाई होता है। और डेवलपमेंट और रीजन थ्रू इंफ्रास्ट्रक्चर एंड अवेलेबिलिटी इलेक्ट्रिसिटी, दिस इज द ओवरऑल बेनिफिट। मीन्स इलेक्ट्रिसिटी चीपली मिल जाएगा। और जो जगह पे डैम होगा वहां पे क्या होगा, जैसे कि हम यार सरदार सरोवर डैम हुआ है, उसमें क्या बोलते हैं इसको, स्टेच्यू ऑफ यूनिटी बना दिया गया है। इसका बनाने का मेन रीजन यही है, टू अट्रैक्ट टूरिस्ट, टू अट्रैक्ट टूरिस्ट, बाहर से लोग आएंगे देखने के लिए, वहां पे उनसे कुछ रेवेन्यू जनरेट होगा। जो जगह में बिल्कुल पैसे जनरेट नहीं हो रहा था, वहां पे कुछ रेवेन्यू जनरेट होगा, एंड दैट कैन बी यूटिलाइज फॉर द स्टेट, वो स्टेट का डेवलपमेंट में काम आएगा। दिस द मेन पर्पज फॉर कंस्ट्रक्टिंग डैम साइट टू ए टूरिज्म साइट। जो डैम साइट है उसको टूरिज्म साइट में कन्वर्ट कर लेते हैं लोग, इसीलिए। बेनिफिट टू द अफेक्टेड पॉपुलेशन, जो लोग को डिस्प्लेस कर दिया गया उस जगह पे, जो पानी भरने भरने के बाद उनको क्या क्या डेवलपमेंट, मतलब क्या मिल रहा है फायदा। उनको एक जगह पे से लेकर दूसरे जगह उठा के रख दिए, तो क्या हुआ वहां पे, बेटर एजुकेशन, बेटर हेल्थ, इलेक्ट्रिसिटी फ्री में मिल जाएगा उन लोगों को, सस्ते में मिल जाएगा, बेटर ड्रिंकिंग फैसिलिटीज, न्यू इंडस्ट्री सेटअप हो जाएगा, बिकॉज देयर इज इलेक्ट्रिसिटी चीप में मिल गया। वाटर, डैम में वाटर रहता है, वाटर भी उनको मिल जाएगा। ये देखो, टूरिज्म सेक्टर डेवलप हो जाएगा, एंड कमर्शियल सेक्टर डेवलपमेंट हो जाएगा। दीज आर द डिफरेंट बेनिफिट ऑफ द डैम। ये किसी हर कोई डैम का है, तेहरी डैम में लिखा हुआ है, लेकिन ये मान लो व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ नर्मदा डैम या सर्वोदय डैम, ये भी उसमें भी आ जाएगा, कोई भी किसी में भी है, सेम लिखना है इसको। हाँ, ये देखो, इशू रिलेटिंग तेहरी डैम, क्या होता है डैम रिलेटेड, क्या क्या इशू है। फर्स्ट इशू इज ह्यूमन राइट्स, एचआर इशू पहले आता है। क्या होता है, फोर्स डिस्प्लेसमेंट ऑफ पीपुल। जैसे कि डैम बन गया तो वहां पे जो लोग को डिस्प्लेस कर दिया गया, तो एक्चुअली ह्यूमन राइट्स को वायलेट करता है। एक्चुअली ह्यूमन राइट्स क्या बोलता है कि अपना मर्जी के हम कहीं पे भी रह सकते हैं, कोई हमको बोलने वाला नहीं है। लेकिन ये गवर्नमेंट क्या कर रहा है, उनको डिस्प्लेस कर रहा है फोर्सली। सो दिस आर वायलेट द ह्यूमन राइट्स। एनवायरमेंटल वायलेशन क्या होता है, कैटास्ट्रोफिक फ्लड डेंजर। मान लो डैम, ठीक है, डैम बंद है, उसके बाद वहां पे बहुत सारा पानी जमा हो गया है। मान लो किसी वजह से डैम में दरार पड़ गया और पानी लीक हो गया, तो क्या होगा, बता सकते हो क्या हो सकता है। जो नीचे जो सी यस, जो नीचे जो लोग रहते हैं, जो सिटी रहता है, वो तो प्रिपेयर नहीं है ना उसके लिए, वो तो कभी भी हो सकता है। अर्थक्वेक हो गया मान लो, तो डैम फट गया, नीचे जो है पूरा खत्म हो जाएगा। ये डेंजर हमेशा बना रहता है डैम के आसपास लोगों को, उसका हाँ हाँ, तो ये जो टूटेगा तो नहीं, लेकिन मान लो एक डेंजर एक बना रहता है, बिकॉज द लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर होल्ड इन दैट एरिया कैन बी रिस्क टू अर्थक्वेक। इतना अमाउंट पानी रहने के बाद क्या होता है, वहां पे अर्थक्वेक होने का रिस्क रहता है। थोड़ा सा ऐसे हिल जाएगा ना, ये सुनामी में होता है, ऐसे थोड़ा सा नीचे से जमीन हिला तो वो डैम का पानी उछला, ठीक है, ये हमेशा डेंजर बना रहता है। उसके बाद करप्शन, देखो अभी ये तो 6 करप्शन सीबीआई केसेस चल रहा है उसके ऊपर, डैम के ऊपर, ये सारे इश्यूज है। हाँ, तेहरी डैम में और एक नया पॉइंट है इधर, ये देखो, ये है आपका प्रोटेस्ट। डैम बनने से के टाइम पे क्या होता है, प्रोटेस्ट होता है। तो प्रोटेस्ट कौन किया था, तेहरी वन विरोधी संगठन समिति, एक समिति लोगों ने बनाया था। और ये वो लोग ने डैम बनने से पहले प्रोटेस्ट करते, मतलब आंदोलन कर रहे थे। और उनका लीडर कौन था, सुंदरलाल बहुगुणा, ये थोड़ा याद रखने का बात है। व्हाट इज द डिमांड, इनका डिमांड क्या था, हाँ, इनका डिमांड क्या था, व्हाट इज द डिमांड ऑफ दिस तेहरी बंद विरोधी संगठन समिति। उनका डिमांड ये था कि जो लोगों को फोर्स डिस्प्लेसमेंट किया रहा है, कर रहे हैं, मतलब दे शुड बी गिवन प्रॉपर रिहेबिलिटेशन एंड प्रॉपर फैसिलिटीज। उनको तो पहले अच्छे से घर बना के, मकान बना के, हॉस्पिटल बना के, स्कूल बना के, रोड बना के, सब कुछ दो। उसके बाद जो फॉरेस्ट एरिया सबमर्ज हो रहा है, दैट फॉरेस्ट एरिया ऑल्सो रीडेवलप्ड। जो जितना भी फॉरेस्ट, मान लो 10 एकड़ फॉरेस्ट पानी में डूब गया,
तो उन लोगों को कहना था कि नए जगह पे जहाँ पे बेरन लैंड है, यू कैन डेवलप और ए फॉरेस्ट, इतना प्लांट लगाओ। So if their demand fulfilled, they can be over. So in case of Tehri Dam, the government had fulfilled the demand. But सरदार सरोवर का केस में अभी भी वो चल रहा है, वो डिमांड फुलफिल कभी नहीं होता है वहां पे। ये दिस इज द नेम सुंदरलाल बहुगुणा। द सुंदरलाल बहुगुणा is also famous for making the चिपको मूवमेंट। चिपको मूवमेंट आपने सुना कभी चिपको मूवमेंट के नाम बारे में? जो भी कोई फॉरेस्ट में पेड़ काटने जाता है ना, तो उनका मोटो था उसको काटने नहीं देना, तो चिपक जाते थे उसमें पेड़ में उसको। हाँ, उसके लिए उसको चिपको मूवमेंट कहते थे। हाँ, वो भी है यहाँ पे, वो रिलेवेंट नहीं है, लेकिन दिस ही इज द मैन। उनका नाम था सुंदरलाल बहुगुणा। ये डैम का ऐसे कुछ फोटो दिया है, ऐसे कैसे कुछ बना रहे हैं। हाँ, उसके बाद सेस्मिक रिक्स, अभी मैं बोला कि जो सेस्मिक रिक्स, सेस्मिक मीन्स अर्थक्वेक प्रोन रिक्स, कभी भी अर्थक्वेक आ सकता है वो डैम के आसपास, ड्यू टू होल्डिंग द लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर इन वन प्लेस। इतना पानी जमा हो गया ना, तो उसी के लिए वजह से। और ये फ्लड्स, डैम फेल हो गया, यहाँ क्या लिखा, इफ द डैम फेल्स देन मेजर लैंडस्लाइड कॉज एंड फ्लड्स हो जाएगा, पूरा सारा बह जाएगा। उसका ऑपोजिट्स, ऑपोजिट क्या होता है, पहले रिवर में फ्लड आता था, अभी डैम के वजह से फ्लड नहीं आ रहा है, ये भी तो हो सकता है ना, दिस बेनिफिट। ये तो रिसेटलमेंट, लोगों को सेटलमेंट कैसे करते हैं किया है वही है। रिहाबिलेशन, लोगों को पैसे दिया, घर बना दिया रहने के लिए, ये वही है। तहरी बंद विरोधी संगठन समिति, वही है। उसके बाद ये फाइनेंशियल इशू है, ये पहले इतना पैसा लगने था, फिर बाद में इतना पैसा लेगा, पैसा बढ़ते जाता है, एस्टिमेशन जितना था ना उसका डबल टिबल होता है। हाँ, नेक्स्ट इज एनवायरमेंटल इशू। एनवायरमेंटल इशूज क्या होता है, the amount of forest that can be submerged in that area, so there is a loss of biodiversity and loss of flora and fauna। flora and fauna means वहाँ पे जो पेड़ पौधे थे, जो वेराइटीज वहाँ पे मेडिसिनल प्लांट था, जो भी था, पानी में डूब गया, मतलब सारे न खराब हो गया ना। तो दिस इज द मेन एनवायरमेंटल इश्यूज रिलेटेड टू दिस डैम। सो गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट हैज प्लांटेड सो मेनी ट्रीज इन अ डिफरेंट एरिया। दूसरा एरिया में उसने क्या किया, प्लांट लगा दिया उसको, कौन मतलब जितना पेड़ डूब गया उसके वजह से दूसरा जगह पे प्लांट लगा दिया। उसके बाद ये कुछ नहीं है, लाइफ डैम, एक्चुअली डैम ऑफ लाइफ 100 ईयर्स होता है, 100 ईयर्स के बाद कह नहीं सकते, डैम कभी भी फेल हो सकता है। दिस इज द न्यू तेहरी इज द टाउन। ये तेहरी जो है ना वो जगह का नाम है। तो ओल्ड तेहरी मतलब पुराना जो गांव था उसका नाम ओल्ड तेहरी है, और न्यू तेहरी मीन्स वहां से लोगों को डिस्प्लेस करके नया जगह पे गवर्नमेंट ने देखो ऐसे घर बना दिया, अच्छे से बिल्डिंग बना दिया, इलेक्ट्रिक सप्लाई दे दिया, तो उन लोगों को फायदा हो गया ना। तो दैट इज कॉल्ड न्यू तेहरी, अच्छा हो गया, उनको स्कूल बना दिया, हॉस्पिटल बना दिया, सब कुछ हो गया। तो दिस इज द बेनिफिट्स। ये तो तहरी हो गया। नेक्स्ट आपका क्या डैम है, आलामती, आलामती डैम। आलामती डैम भी एक डैम है जिसमें उसका मेन कहाँ पे ओरिजिनेट हो रहा है, कौन सा रिवर में वो डैम बना हुआ है। लेट्स सी, थोड़ा सा देख लेते हैं, ओवरऑल आपको पता चल जाएगा। See, Alamati Dam is present in the South India, where dam is situated in the Krishna River। ये आपको याद रखना है। भागीरथी रिवर कौन सा डैम था, तेहरी डैम। नर्मदा रिवर में कौन सा डैम था, सरदार सरोवर डैम। एंड कृष्णा रिवर में कौन सा डैम है, आलामती डैम। ये जो डैम का नाम है उसका नाम है आलामती डैम, और बाकी सब सेम है, ठीक है। Alamati Dam is situated in Krishna River and which is originated in Maharashtra and pass through Telangana and Andhra Pradesh and Bay of Bengal। इधर से ऊपर से ऐसे नीचे आ रहा है, इधर दिख रहा है ना आपको। हेलो,
See this side from the down side. Maharashtra, Karnataka, Andhra Pradesh. These three states are covered by this Alamatti Dam. नेक्स्ट कौन सा डैम है? नेक्स्ट डैम इज कावेरी. कावेरी डैम. कावेरी एंड महानदी. महानदी, दैट इज कॉल्ड हीराकुद डैम. हेलो, हेलो दीक्षित, हेलो, आर यू देयर? हेलो. हाँ हाँ, यस. कनेक्शन वाज लॉस्ट एक्चुअली. ये हो गया था उस बीच में. हाँ, सुनाई दे रहा अभी? हाँ हाँ. तो Alamatti Dam in places, which river Alamatti Dam is there? River, रिवर, रिवर कृष्णा. अभी मैंने जस्ट बोला, आपको सुनाई नहीं दिया शायद. सी हियर. इज इट विजिबल? दिख रहा है ना? हेलो. ना ना ना, कृष्णा रिवर. व्हिच रिवर? हाँ. हाँ, originated in Maharashtra, but it is dam is constructed over Krishna River, originated in Maharashtra and passed through Telangana and Andhra Pradesh and up to Bay of Bengal. ये ऊपर से ऐसे नीचे आ रहा है, from west to east. This is called which dam? Alamatti Dam. ये है आपका, देखो, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, ये तीनों स्टेट में जा रहा है. फिर उसके बाद बाकी सब इशू सेम है यहाँ पे. कौन कौन सा इशू है देखो. मेन पर्पजेस एंड डिफिकल्टीज, हर एक डैम में वही सेम रहेगा. मेन पर्पजेस इसका ड्रॉट कंट्रोल. ड्रॉट कंट्रोल मीन्स इरिगेशन, जो भी कैनाल होता है, इरिगेशन होता है, वो ड्रॉट कंट्रोल होता है. फिर ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई होता है. इफेक्टिव यूज ऑफ वाटर. उसके बाद हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर प्रोजेक्ट होता है. दीज आर द डिफरेंट डिफरेंट बेनिफिट्स. डिफिकल्टी क्या होता है? द विलेजेस पीपुल्स आर फोर्स टू रिहेबिलिटेट. एक जगह पे उठा पे दूसरी जगह पे बैठना पड़ता है. कंस्ट्रक्शन और रिहेबिलिटेशन ये ओवरऑल हर जगह पे सेम होता है. ये फिर ये तो सारी सेम है, सारे सेम है ये सारी चीजें. ओके. सो नेक्स्ट हो जाता है कौन सा डैम? हाँ, महानदी रिवर और कावेरी रिवर, ये दोनों नाम, रिवर का नाम सुना है आप? महानदी और कावेरी. हाँ, महानदी रिवर कहाँ पे है? महानदी रिवर, महान, हाँ, कावेरी. कावेरी, कावेरी लोकेटेड इन, ठीक है, कावेरी के बाद पहले वो कर लेते हैं. हाँ, साउथ साइड है. कावेरी रिवर. कावेरी रिवर इज प्रेजेंट इन, फ्लोइंग इन द तमिलनाडु एंड कर्नाटका. देखो ये भी साउथ का रिवर है. लेकिन एक चीज यहाँ पे याद रखना, कावेरी रिवर जो है ना, इसका ऊपर कोई डैम फैम नहीं है, ठीक है. बाकी रिवर में डैम इश्यूज है. डैम बनाने के बाद वाटर लग हो गया, लोगों को डिसप्लेसमेंट कर दिया, ठीक है. लेकिन कावेरी रिवर का इश्यूज को थोड़ा दूसरा अलग है. उसका इश्यूज क्या है? दिस कावेरी रिवर इज डाइंग. ये मर रहा है ये रिवर, तो हमको ये रिवर को बचाना है. तो तुम बोलोगे कि कैसे मरता है रिवर, बता सकते हो? हाउ रिवर इज डाइंग, एक बात बताओ मुझे. How river is dying. This Kaveri issue is throughout different. It is not constructing any dam and water retention. But the river Kaveri is dying. This is the issue here. Kaveri river mar raha hai. That means Kaveri river get waterless because it does not depends, does not flow water throughout the year. सिर्फ बारिश के महीना में कुछ पानी बहता है, बाकी दिन में सूखा पड़ा रहता है. तो इन समर सीजन क्या होता है, रिवर में पानी ही नहीं है बिल्कुल. तो
एज रिवर बैंक्स में, रिवर साइड साइड में जितना भी सिटीज है, गांव है, वो लोग कहाँ से पानी लेंगे? मेन पर्पज ऑफ रिवर इज टू गिव वाटर और सप्लाई वाटर टू द नाइबर और साइड साइड में जो लोग रहते हैं, फॉरेस्ट एरिया और जो पीपुल रहते हैं, दैट कैन डिपेंड ऑन द रिवर। और रिवर में ही पानी नहीं रहेगा तो वो लोग कैसे जाएंगे, कहाँ जाएंगे? दैट इज द इशू इन रिवर कावेरी। बीच में नरेंद्र मोदी एक प्रोजेक्ट निकाले थे, क्या है, इंटरलिंकिंग ऑफ द रिवर। आपने सुना होगा कि ये रिवर का पानी इस रिवर में जोड़ दें, उस रिवर का पानी उस रिवर में जोड़ दें। दिस आर द डिफरेंट प्रोजेक्ट, लेकिन वो सक्सेस नहीं हो पाया। सो हाउ वी कैन सेव द रिवर कावेरी? ये रिवर जो कावेरी इज डाइंग और गेटिंग वाटर लेस, हाउ कैन वी सेव? लेट्स सी, हम कैसे उसको बचा सकते हैं रिवर कावेरी को। बिफोर दैट, ये रिवर कावेरी में देखो ये सारे चीज आ रहा है। रिवर बेसिन में तमिलनाडु है, कर्नाटक है, केरल है, पुडुचेरी, दीज आर द डिफरेंट स्टेट्स वेयर द रिवर फ्लोज। So these peoples are also depend on this river, water of the river. देखो, this is the graph where the water is getting less during the time. As the time period increases, the water level of the river that is decreases. And what is the main reason for water dying? That main river is main reason is the what is the main reason? Climate change and देखो, this main reason is, yes, climate change, global warming. This is the main reason, and the mainly decreases water is because of climate change and less rainfall. पहले बहुत पानी बारिश होता था, पानी बहुत फ्लो होता था, अभी बारिश ही नहीं हो रहा है। उसके बाद जो भी बारिश हो रहा है वो क्या होता है, तुरंत फ्लो होके चले जाता है, फ्लड होके। वहां पे ग्राउंड वाटर रिचार्ज नहीं होता है, मतलब नीचे पानी नहीं जाता है, ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है। दिस इज द मेन रीजन। और अनदर मेन रीजन इज डिफॉरेस्टेशन। जो रिवर का साइड साइड में जो पेड़ पौधे हैं, जैसे ये रिवर है, ये रिवर है, इसका साइड में पेड़ पौधे होते हैं ना, इसको हम काट देते हैं, तो क्या होता है, जो पानी रिचार्ज होने वाला था, जो बारिश होने वाला था, सब नहीं होगा और ये रिवर में पानी सूख जाएगा। सो व्हाट इज द मेन, हाउ वी कैन सेव द रिवर? दिस इज द डिफॉरेस्टेशन, द मेन रीजन फॉर डाइंग ऑफ द रिवर। पानी खत्म होने का मेन रीजन है वही डिफॉरेस्टेशन। हम पेड़ काट दिया सारा उसका। कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन, जो इंडस्ट्री बैठा दिया हम लोग सारे, ग्लोबल वार्मिंग हो गया, क्लाइमेट चेंज हो गया। दिस इज द मेन रीजन फॉर द, यहाँ पे जो लिखा है, कार्बन डाइऑक्साइड इज द ग्रीन हाउस गैसेस दैट कंट्रीब्यूट ग्लोबल वार्मिंग। सीधे धीरे जो टेम्परेचर बढ़ रहा है धीरे धीरे, वो उसका मेन रीजन ही कार्बन डाइऑक्साइड है। फॉरेस्ट रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड। फॉरेस्ट रहता था तो पहले क्या होता था, कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेता था और ये ग्लोबल वार्मिंग नहीं होता था। दीज आर मेन रीजन। फिर नेक्स्ट रीजन हो गया सॉइल इरोजन। पेड़ पौधे नहीं है तो क्या होगा, सारा जो रेनी के टाइम में जो सारा सॉइल था मिट्टी के साथ नदी में आ जाएगा, और नदी का लेवल जो है इट कैन बी डिक्रीज, तो पानी वहां पे नहीं रहेगा। दिस इज ऑल्सो मेन रीजन फॉर रिवर डाइंग। नेक्स्ट, हैबिटाट डिस्ट्रक्शन। रिवर मरने से क्या फायदा, मतलब रिवर सूख गया तो उसमें क्या मतलब ये हो रहा है, व्हाट इज द डिसएडवांटेजेस? फर्स्ट इज कॉल्ड फॉरेस्ट हैबिटाट लॉस। दैट मीन्स जो साइड साइड में जो फॉरेस्ट थे, वहां पे जो पेड़ पौधे, जो जीव जंतु थे वहां पे रिवर के ऊपर डिपेंड कर रहे थे, सारे मर जाएंगे, पानी नहीं है तो। एनिमल यूज फूड शेल्टर एंड नेस्टिंग साइट्स, जो फॉरेस्ट साइड में था वो सारे उनको लॉस्ट हो जाएगा। विदाउट एनिमल प्लांट सर्वाइव टू देयर पेरिश। दैट मीन्स फॉरेस्ट में प्लांट और एनिमल दोनों आपस में इंटरलिंक्ड है, मतलब प्लांट नहीं है तो एनिमल नहीं रहेगा और एनिमल नहीं है तो प्लांट नहीं रहेगा, एक ही कोई नहीं रहता है, बिकॉज बोथ आर इंटरलिंक्ड। यार प्लांट जो है, मान लो घास नहीं है तो डियर नहीं है, गोट नहीं है, कैसे क्या खाएगा वहां पे? और गोट डियर नहीं है तो लायन नहीं है वहां पे, बिकॉज लायन डिपेंड्स ऑन दिस गोट एंड डियर, बिकॉज उनका वो खाना है। बेसिकल फूड चेन, हम लोग आगे आएंगे उसके बारे में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। सो ये भी एक पॉइंट है। सो हाउ कैन वी प्रिवेंट दिस रिवर डाइंग? ये सूखा होने से कैसे बचाएंगे? द मेन कॉन्सर्न इज डिफॉरेस्टेशन। सो वी हैव टू मेक एफॉरेस्टेशन। एफॉरेस्टेशन मीन पेड़ लगाएंगे, रिवर के दोनों साइड में बहुत भरपूर मात्रा में पेड़ लगाएंगे, पेड़ नहीं काटेंगे। दिस इज द मेन कॉन्सर्न थ्रू व्हिच वी कैन सेव द रिवर। रिवर को बचा सकते हैं सूखने से, बिकॉज रिवर में पेड़ लगाने, साइड साइड में पेड़ लगाने से क्या होगा, सॉयल इरोजन नहीं होगा। उसके बाद वहां पे
क्या होगा, बारिश ज्यादा होगा, सब कुछ अच्छा होगा। यही है, ये बताया गया है। देखो इसमें हाउ ट्री कैन सेव रिवर, प्लांट या फॉरेस्ट पेड़ लगाने से रिवर कैसे बचेगा, उसका मैकेनिज्म दिया हुआ है। देखो ये दो फिगर है यहाँ पे, पहला फिगर में प्लांट है, दूसरा फिगर में प्लांट नहीं है। तो देखो ये जो है, मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ इसको। In this figure, see the after rain, what happened? This soil, this water can be reached through the ground, and ground के अंदर ये पानी चले जाएगा, और पानी जाने के बाद ये अंदर अंदर जाके यहाँ पे पानी ज्यादा जमा हो जाएगा, और जो सॉयल, मिट्टी, धूल यहाँ पे इधर फ्लो नहीं होगा, तो ये नहीं भरेगा। दैट मीन ये इंटैक्ट रहेगा पानी रे, बिकॉज दिस ट्री आर द मोस्ट इंपोर्टेंट हियर, बट इन दिस केस देयर इज नो ट्री। सो देखो ये जो यहाँ पे ग्राउंड वाटर रिचार्ज नहीं होगा, नीचे ग्राउंड वाटर में पानी नहीं आएगा, डायरेक्ट सारा पानी कहाँ, इधर फ्लो हो जाएगा, और ज्यादा पानी इधर फ्लो होने की वजह से पेड़ भी नहीं है, उसके वजह से क्या होगा, सारा मिट्टी धूल इधर आ जाके देखो ये जो है ये आधा ऐसे ही फुल हो जाएगा, और ये तुरंत फ्लड हो जाएगा और सारा पानी बह जाएगा समुद्र में, तो पानी ज्यादा नहीं रह पाएगा ये। सो बाकी दिन में क्या होगा, सूख जाएगा ये रिवर। So there is a necessary for planting the tree in the side of this river। ये दोनों साइड में हम जितना पेड़ लगाएंगे, जितना हरा भरा रहेगा, we can getting more water in the river। ये भी वही है। How trees are overside benefit to the according to scientific study। साइंटिफिक रीजन क्या क्या है? Keep river perennial। perennial means हैविंग वाटर थ्रू आउट द ईयर। बारिश के मतलब पानी जो है वर्ष के कोई भी सीजन में रहना चाहिए, दैटिकल पेरिनियल। रिड्यूस फ्लड, पेड़ रहेंगे तो फ्लड नहीं होगा। ड्रॉट, सूखा नहीं पड़ेगा। रिचार्ज ग्राउंड वाटर, ग्राउंड वाटर में पानी जाएगा। नॉर्मलाइज रेनफॉल, पेड़ होगा तो बारिश होगा, बारिश होगा तो पानी ज्यादा रहेगा। क्लाइमेट चेंज भी नहीं होगा, बिकॉज दिस ट्री कैन गेट एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा एब्जॉर्ब कर लेगा, तो क्या होगा, क्लाइमेट चेंज नहीं होगा। सॉइल इरोजन, इट कैन प्रिवेंट, जो धूल मिट्टी पानी के साथ इधर आ जाता था ये नहीं आएगा, तो यहाँ पे सॉइल इरोजन नहीं होगा। इंप्रूव वाटर क्वालिटी, वाटर में सही क्वालिटी रहेगा, खराब नहीं होगा, पॉल्यूटेशन नहीं होगा। एंड दिस इज बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी मीन्स यहाँ पे पेड़ पौधे रहेंगे तो सारे एनिमल प्लांट सारे इधर आ जाएंगे यहाँ पे रहने के लिए, ये सारे चीज बेनिफिट है। उसके बाद ये कुछ नहीं है। नेक्स्ट और एक है उसका, महानदी के बारे में बोल देता है। महानदी रिवर कहाँ पे है? महानदी रिवर इज प्ले देखो इज ओरिजिन इन द छत्तीसगढ़ एंड फ्लो थ्रू ईस्ट ऑफ द उड़ीसा। हट इज इंडिया मैप कहाँ गया, ये देखो इंडिया मैप में महानदी रिवर के बारे में, ये सारे तो जियोग्राफी में आता है, कौन सा रिवर कहाँ पे है। ये महानदी रिवर ये है, देखो ये काबरी रिवर इधर है, कृष्णा रिवर यहाँ पे है जहाँ पे अलमदी डैम है, ये गोदावरी रिवर यहाँ पे है, उसके नर्मदा रिवर इधर है। तो वी आर डिस्कसिंग अबाउट दिस महानदी रिवर, एंड दिस महानदी रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम छत्तीसगढ़ एंड फ्लोइंग थ्रू ओडिशा। एंड दिस महानदी रिवर देयर इज ए लार्जेस्ट आर्च डैम कॉल्ड हीराकुद डैम इज प्रेजेंट इन द ओडिशा। देखो यहाँ पे लिखा है Mahanadi river distance 860 kilometer. Total distance of the river Mahanadi is 860 kilometer, and the Mahanadi river ठीक है उड़ीसा से होके आ गया। हीराकुद डैम नियर संबलपुर, दिस इज द लार्जेस्ट आर्थ डैम ऑफ द वर्ल्ड। वर्ल्ड में सबसे लंबा आर्थ डैम, रिमेंबर दिस इज आर्थ डैम, मिट्टी का बांध है। दिस इज 25 किलोमीटर लेंथ। कहाँ गया, कहाँ है मैन मेड लेक, इट इज 55 25 किलोमीटर किधर है, कहाँ पे लिखा है कि 25 किलोमीटर कहीं पे लिखा तो है, नो, बट रिमेंबर दिस इज 25 किलोमीटर लेंथ इन द हीराकुद डैम। हीराकुद लेंथ इज 25 किलोमीटर, एंड it having one hydroelectricity power project। Here also there is a canal, irrigation canal is there, hydroelectricity power is there, and it can also regulate floods। पहले बहुत क्या होता था बारिश के टाइम पे फ्लड होता था, अभी वो कैन चेक हो गया है। और बाकी सारे चीज सेम है, डैम बनने से पहले लोग डिस्प्लेस हो रहे हैं, पानी सबमर्ज हो रहा है, वो सारी चीज सेम है, सब रिवर में सेम है।
कहाँ पे लिखा है? ये बाद में रीडिंग कर लेना आपने। ठीक है। सो महानदी रिवर भी गया। और ये हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट इन जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट। इसमें क्या है, जैसे कि जम्मू कश्मीर एज यू नो दिस जम्मू कश्मीर इज ए हिल रीजन एंड इट इज सिचुएटेड इन द हायर अल्टीट्यूड। वहां पे क्या होगा, हिमालयस रीजन है, तो वहां से जो भी पानी आएगा दैट इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम द ग्लेशियर्स दैट इज फ्लोज थ्रू आउट द ईयर। हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर दिस टू आर सिचुएटेड इन द बेसिन ऑफ दिस हिमालय रीजन। हिमालय पहाड़ी का नीचे है, तो वहां पे जो भी पहाड़ी में पानी झरना आ रहा है, वो पानी का झरना क्या होगा, हमेशा बहता रहेगा। एंड देयर इज नो डैम देयर, वहां पे डैम बांधने का जरूरत नहीं है, बस देयर इज ए कंस्ट्रक्शन ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट। दैट मीन्स एक टर्बाइन बैठा लो, बस इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो गया। सो देयर आर डिफरेंट हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट ऑफ देयर इन दैट नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, जैसे कि सिक्किम, मेघालय, इधर इस साइड में हो गया इंडिया मैप का। उसके बाद इधर हिमाचल प्रदेश एंड जम्मू कश्मीर। आई विल गिव द मटेरियल, ये उसके बारे में है। सो मैं ऐसे जल्दीबाजी में थोड़ा थोड़ा जल्दी कह लिया, मतलब आपको थोड़ा स्पीड लग रहा होगा बिकॉज आई ऑलरेडी फिनिश दिस चैप्टर। कुछ कहना है आपको, मतलब कुछ? हम्म, आपका ईमेल आईडी ना मुझे सेंड कर देना, ग्रुप में शेयर कर देना, जिसमें मैं कि ये मटेरियल भेज सकूं, क्योंकि ग्रुप में इतना मटेरियल नहीं भेज सकता। आपको ईमेल में डायरेक्ट मैं आपको भेज दूंगा, तो आपको डाउनलोड कर लेना ईमेल से। हाँ। और एज इट इज एमएससी कोर्स है ना, ठीक है, तो बीएससी कोर्स होता तो थोड़ा सा बेसिक आएगा, बट एज एमएससी कोर्स ये थोड़ा सा, जैसे कि आपको नहीं लग रहा है कि इतना डिटेल्स में जानना, ये सारी चीजें अभी थोड़ा सा मतलब ज्यादा है। हम्म, हाँ हाँ, लेकिन ये टेक्निकल नहीं है, एक बेनिफिट, दिस बेनिफिट माने दिस इज नॉट टेक्निकल। आपको बस कहानी पढ़ना है, हिस्ट्री पढ़ना है उसमें, और कोई क्या है इसमें, कौन सा ईयर में बना था, उसमें क्या बेनिफिट हुआ, कौन ये क्या डिसएडवांटेज हुआ। हाँ, देर आर सम टर्म्स एज न्यू, जैसे कि आपको ये मैंने बायोडाइवर्सिटी बोल दिया, उसके बाद कैटास्ट्रोफिक इवेंट हो गया, उसके बाद आपका जो फ्लोरा फोना, हाइपर डिफोरेस्टेशन, ये सारे चीज आएगा। लेकिन आपको कुछ भी समझ में नहीं आया ना, तो बोलना कि सर ये वर्ड क्या है, हम बता दो, मैं उसके ऊपर फिर डिटेल जाएंगे, क्योंकि ये वर्ड नहीं समझेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। और एक बार समझ लिया ना, तो अपने एज यू राइट इन योर ओन वर्ड्स, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे जो लिखा है उसी को लिखना है, ऐसा बिल्कुल ही नहीं है। हाँ हाँ, कंटेंट को रखना है। लेकिन मान लो कोई जो नाम है, उसको नाम को याद रखना है, कौन सा ईयर है, वो तो छोटा मोटा है, वो कोई बात नहीं है। और आपका हुँ? हाँ हाँ, वही वही। So yeah, unit 2 and unit 4 I will teach, and unit 1 and unit 3 Anjali madam she will teach taught actually this। हम लोगों ने ना, और पंकज सर जो पढ़ा रहे हैं, उसका भी 2 यूनिट में पढ़ाऊंगा। कल फिर से क्लास लेंगे हम, क्योंकि ये कहाँ गया वो unit 1 2 का, दिखा देता हूँ बस आपको। एक्चुअली संडे को क्या होता है ना, हम लोग यहाँ पे ऑफलाइन क्लास लेते हैं। बाकी लोग भी आते हैं, वो जय और नकुल भी आते हैं, तो अब भी आ से आपको कितना किलोमीटर होगा यहीं से? हाँ हाँ, संडे को हाँ 9:30 से स्टार्ट होता है, 9:30 से लेकर हाँ। आपका कहाँ? हाँ, संडे को तो ऑफ रहेगा ना आपका भी? हाँ हाँ हाँ, संडे को ऑफ रहेगा। हम्म। और ये जो कहाँ है, मैं हाँ दिस इकोलॉजी बायोडाइवर्सिटी का पंकज सर क्या पढ़ा रहे हैं आपको? यूनिट 3। हाँ हाँ, यूनिट 3 दिख रहा है ना मेरा स्क्रीन आपको? हेलो? हेलो? हाँ हाँ हाँ, तो एक्चुअली फोन आ रहा था मेरा।
हाँ हाँ, यूनिट 3 पढ़ाएंगे और यूनिट 4 पढ़ाएंगे वो। तो हम लोग ये पढ़ेंगे, यूनिट 1 2 ये हम लोग पढ़ेंगे। तो ये जो आपका इकोलॉजी क्या है, इकोसिस्टम क्या है, ये आपका एनवायरनमेंट का ना कोर सब्जेक्ट है, जिसको बोलते हैं प्योर एनवायरनमेंट, ये वाला। तो जो वाटर इशू वगैरह हो तो वो सेकेंडरी है, उसका अलग है। सो क्या क्या नहीं समझा मैंने। फैक्टर व्हिच इंक्रीजेस बायोडाइवर्सिटी। अच्छा, तो व्हाट आर दिस फैक्टर्स, ये पढ़ाए थे? हेलो। कट। हाँ हाँ हाँ। हाँ हाँ। हम्म। हाँ, अच्छा। हाँ हाँ हाँ। हम्म। हम्म। यस। हम्म। हम्म। हाँ, वो तो ऑब्वियस है। हाँ हाँ हाँ। अरे बहुत इंटरेस्टिंग लगता है। नहीं, ये तो आपने +2 बीएससी में, और बीएससी बोलता हूँ, +2 में थोड़ा सा पढ़ा होगा, तो बायोलॉजी में अपना अब लिया होगा तो। बायोलॉजी था ना +2 के टाइम पे, बहुत पुराना हो टाइम की बात बोल रहा हूँ मैं। हाँ हाँ हाँ। हाँ, तो उसमें हाँ बस टर्म नया है तो। आपका ग्रेजुएशन कौन सा ईयर कंप्लीट था? ग्रेजुएशन कौन सा ईयर है? 21 में आपका? ओके, 21 लास्ट ईयर मतलब। हम्म। हाँ हाँ हाँ। हाँ, वो तो है ही। हाँ, पूछो। हाँ हाँ। इंडस्ट्रियल एनवायरनमेंट है वो, कौन सा सेम में आएगा, रुको मैं दिखाता हूँ तुमको। ये आएगा सेम 2, एमएससी का सेम 2 में देखते हैं। हाँ, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन एंड कंट्रोल टेक्निक, देखो इसमें आ रहा है ये, जिसमें आपको आएगा स्टैक मॉनिटरिंग, बायो मॉनिटरिंग, ये सारी चीज आएगा, वायर स्क्रबर, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटर, ईएसपी, साइक्लोन सपोर्टर, ये सारी इंडस्ट्रियल रिलेटेड चीजें है। यूनिट 1 एयर पोल्यूशन रिलेटेड, फिर सॉइल का रिलेटेड आएगा, फिर नॉइज का आएगा, ऐसे वाटर का भी और आएगा कहीं पे। ये तो एयर का चला गया। और ये हो गया एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग। हाँ, क्या क्या? नहीं समझा। हाँ 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 हाँ, वो तो है ही, उसमें भी डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस ऑफ दे आर फॉर ट्रीटिंग वाटर ट्रीटमेंट, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट सेपरेट है, ब्रांच है, जैसे प्राइमरी ट्रीटमेंट, सेकेंडरी ट्रीटमेंट, टर्शियरी ट्रीटमेंट, वो सारे है। मैं वही ढूंढ रहा हूँ, वाटर ट्रीटमेंट का कहाँ है आपका, कौन सा? डिजास्टर मैनेजमेंट, हाँ ये देखो, सेकंड सेमेस्टर में आ गया, वाटर एंड वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट आया ना ये देखो, वाटर एंड वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट में आ गया, ऑब्जेक्टिव ऑफ डब्ल्यू वाटर ट्रीटमेंट प्लांट एंड वाटर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स क्या क्या है, वाटर वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट कैसे करोगे, टाइप ऑफ ट्रीटमेंट, फिजिकल ट्रीटमेंट, स्क्रीनिंग जो भी है, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का पूरा सारे स्टेप बाय स्टेप है यहाँ पे आएगा आपका। हम्म।
यस यस, ये देखो सेकंड सेम में आएगा आपका। सिर्फ वाटर का नहीं, वो नॉइज का आएगा, एआर का आएगा, सब कुछ आएगा आपको, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट आएगा। हॉस्पिटल का जो मैनेजमेंट, मतलब जो कैसे उनका भी तो बहुत सारे फेंकते हैं, कैसे करते हैं, सब कुछ आता है आपका यहाँ पे डिटेल्स में। से- हाँ, टोटल अभी तीन हैं। आप अभी पहले दो थे, अभी आप हो गए तो तीन हो गए, और एक कई और एक ज्वाइन करने वाला था। मैडम को पूछना पड़ेगा, अंजलि मैडम, उनको पता होगा। टोटल चार स्टूडेंट है, लेकिन चौथा वाला अभी आया नहीं अभी अभी। हम्म। हम्म। देखो एनवायरनमेंट ऐसा है कि आप एमएससी के बाद आप जहाँ चाहो तो किसी भी जो ऐसे एनवायरमेंटल कंसल्टेंट हो गया, तो इसी फील्ड में तो अलग से जा सकते हो। लेकिन हर एक जो कोर इंडस्ट्री हो गया, उसमें भी एनवायरमेंटल ये है, डिपार्टमेंट है। जैसे कि आपका फेल हेल्थ। हाँ हाँ हाँ, जाते हैं जाते हैं। जाते हैं, वहीं पे भी जाते हैं, लेकिन वहाँ पे एक जैसे कि कोई पहले से वहाँ पे जॉब कर रहा है या एक्सपीरियंस है, तो उसको प्रीफर करते हैं वहाँ पे इंडस्ट्री में खास करके। कोई फ्रेश एमएससी किया होगा ना, तो वहीं पे वो नहीं जा सकता डायरेक्ट इंडस्ट्री में, उसको कहीं कंसल्टेंट में या कहीं पे पहले ट्रेनिंग लेना पड़ेगा अच्छे से, जो इक्विपमेंट है सारे, और सारे चीज पहले जानना पड़ेगा, फिर वहीं पे आपको ले सकते हैं एक्सपीरियंस होने के बाद इंडस्ट्री में। ये है आपके लिए इजी हो जाएगा। मतलब आप पहले से ही पता है आपको वाटर ट्रीटमेंट क्या है उसका, मतलब एक्सपीरियंस और एक पढ़ाई दो अलग चीज होता है ना। आप थ्योरी में पढ़ ही लोगे, लेकिन जो नॉलेज है वो अलग ही है। तो इंडस्ट्री वाले उनको क्या चाहिए, उनको जो काम करने वाले चाहिए, उनको थोड़ी चाहिए कि थ्योरी में क्या है। अब मैं भी इंडस्ट्री में जॉब किया था, 5 साल जॉब किया, फिर बाद में आया यहाँ पे, मतलब एमएससी पीएचडी करने के लिए। मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ था 2007 में। फिर मैंने जॉब किया वेदांत एल्यूमिनियम लिमिटेड, सुना होगा नाम आप। एल्यूमिनियम कोर प्लांट है वो, वहाँ पे 5 साल जॉब किया, फिर मैंने एमएससी में आपका एनवायरमेंट किया। फिर एमएससी में एनवायरमेंट करके फिर पीएचडी किया। प्लांट में थोड़ा सा डिफिकल्ट एक्चुअली, आई फील दैट प्लांट लाइफ इज नॉट सुइटेबल। मतलब अच्छा नहीं लगता है। जैसे कि 8 घंटा ड्यूटी करो, फिर ऊपर जो मैनेजर है वो आपको ऊपर चिल्लाता रहेगा, इस टाइप का है कि नहीं। दैट इज नो नो। हाँ, प्लांट एनवायरनमेंट